Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in this video lecture series related to subject computer science for grade 12 according to the syllabus of Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad. Dear students, this is your textbook which is published by National Book Foundation. Students, there are 9 chapters in your syllabus. 2 chapters are theoretical based, and chapter 3 to chapter 9 are related to object oriented programming language in C++. Chapter 1 is about operating system. Chapter 2 is related to system development life cycle. In chapter 3, we will study object-oriented programming in C++, in which we will study introduction and C++ constant and variables, input-output handling, operators in C++. In chapter 4, we will study control structures, in which we will study decision structures and loops. Chapter 5 is related to arrays and string. We will study 2 types of arrays, one-dimensional array and two-dimensional array, and we will also study about strings. Chapter 6 is about functions, in which we will study different types of functions in C++ language, advantages of functions, function signature, function components, scope of variables in functions, parameters, local and global functions, passing arguments and returning values, function overloading. In chapter 7, we will study about pointer variables, memory addresses, reference operator, dereference operator, mean allocation and deallocation of memories, declaring variables of pointer types, pointer initialization. In chapter 8, we will study about objects and classes. And in last chapter, we will study about file handling. So, dear students, let's start our today's lecture from chapter 1, operating systems. After completing this lesson, you will be able to define operating system, describe commonly used operating systems and types of operating systems, as well as you will define single user and multi-user operating systems. You will also get knowledge of main functions of an operating systems. You will also able to define process, states of process, differentiate between the following: thread and process, multi-threading and multitasking and multi-programming. We are starting our lecture from introduction to an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर रन होता है. जैसे ही कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और कंप्यूटर की रैम में लोड हो जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसेस as well as all of its software and hardware. जितने भी सॉफ्टवेयर्स हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, जो भी हार्डवेयर हमारे सिस्टम के साथ अटैच्ड है, ये तमाम मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट आल्सो अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर.
ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर यूज़र के नॉट रन एनी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। डेफिनेटली जब हमारे सिस्टम में विंडोज़ ही नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ही नहीं है, तो डेफिनेटली हम उस कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। It automatically loads in RAM. In operating system, automatically loads in RAM when the computer is turned on. जैसे ही कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की रैम में लोड हो जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट कंप्यूटर से लेकर आजकल के कंप्यूटर तक ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आती रही हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज अ प्रोग्राम है दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्योंकि हमारे सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एग्जीक्यूट होते हैं एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। और जो यूजर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। जिस तरह हमारे सिस्टम में विंडोज़ है तो हम उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर हम उसमें चला सकते हैं, ठीक है, उस पर काम कर सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर हम उस पर अटैच कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तमाम कुछ मैनेज करता है। एवरी डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन includes the operating systems that provide basic functionality for the device. Common desktop operating systems include Windows operating system X and Linux. ये commonly used होते हैं। कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के जो दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एंड लाइनक्स। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? लोड्स एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इट। जैसे हमने पढ़ा कि जैसे ही कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लोड हो जाता है रैम में, और उसके अलावा भी हम कोई प्रोग्राम्स, कुछ एप्स वगैरह हम ओपन करना चाहें तो वो भी मेन मेमोरी में ओपन होंगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के जो ऑपरेशन है उन पे भी कंट्रोल करता है। एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जस्ट लाइक हार्ड डिस्क है या यूएसबी हमने लगाई हुई है तो उसको भी कंट्रोल जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस such as hard disk, USB flash drives, etc. तो फाइल्स एंड फोल्डर का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद है मैनेजेस ऑपरेशन ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं उन सबको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अलोस मल्टीटास्किंग टू हैंडल सेवरल टास्क एट अ टाइम। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, हम एक्सेल में भी काम कर रहे हैं, हम यूट्यूब भी ओपन कर रहे हैं, तो क्या है? अलोस मल्टीटास्किंग। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें फैसिलिटी दी है कि हमें अलो किया है कि हम मल्टीटास्किंग भी हैंडल कर सकते हैं, such as running a spreadsheet software and a word processor simultaneously. Perform network operations such as enable number of users to communicate with each other in the network. नेटवर्क की जो फैसिलिटी, जो नेटवर्क का एनवायरनमेंट हमें
ऑपरेटिंग सिस्टम देता है. And share computer resources such as CPU, main memory, hard disk, प्रिंटर, इंटरनेट, ये तमाम फैसिलिटीज भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो डिटेक्ट हार्डवेयर फेल्यूर. फॉर एग्जांपल हमने कोई माइक लगाया या हमने कोई और एक्सटर्नल डिवाइस लगाया, किसी हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी कौन डिटेक्ट करेगा, तो उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा. प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड. यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए हमें सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डास्क, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम 2, Unix and Linux. DOS stands for Disk Operating System. तो ओल्ड कंप्यूटर्स में इन 1970s में जो कंप्यूटर थे, शुरू में जो माइक्रो कंप्यूटर आए थे, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था दैट वाज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है? इट वाज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम because the entire operating system was stored on a single floppy disk. क्योंकि पहले जो स्टोरेज के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी, तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल फ्लॉपी डिस्क पे आ जाता था. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? टेक्स्ट बेस्ड था, आल्सो नोन एज कमांड लाइन यूजर इंटरफेस. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस में इस तरह से होता था कि अगर आपको प्रॉपर कमांड याद है तो आप काम कर सकते थे, और अगर आप प्रॉपर कमांड आपको याद नहीं है तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं कर सकते थे. तो कुछ जो हैं इसके डॉस के कमांड्स पढ़ लेते हैं. द फॉलोइंग आर सम डॉस कमांड्स. अगर आपको किसी फाइल को रीनेम करना है, कोई नाम देना है, रीनेम करना है किसी भी फाइल को, तो उसके लिए हम क्या करते थे? लिखेंगे रीनेम, इस तरह से होता था C:/, रीनेम, ओल्ड नेम, जो पुराना नाम होगा उसका ओल्ड नेम देंगे, और साथ में न्यू नेम लिखेंगे, तो हमारे फाइल का नाम चेंज हो जाएगा. फॉर रीनेमिंग फाइल, CD फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी, जिसको हम विंडोज में फोल्डर कहते हैं. CD ये फॉर एग्जांपल आप C ड्राइव खड़े हैं, आपको D ड्राइव में जाना है, तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते थे CD, D ड्राइव में जाना है और कॉलन, तो हम इस तरह से D ड्राइव में मूव कर सकते थे. और अगर आपने उस डायरेक्टरी में जाकर C में या D में उसके फाइल्स देखने हैं और फोल्डर्स देखने हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप C खड़े हैं, C के अंदर आपको फाइल्स और फोल्डर देखने हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे dir डायरेक्टरी, तो तमाम फाइल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती थी. लेकिन अगर ज़्यादा फाइल्स होती थी तो वो आगे से फाइल तेज़ी से आगे चली जाती थी, तो आप सिर्फ लास्ट वाले फाइल्स देख सकते थे. तो उसके लिए फिर कमांड होता था डायरेक्टरी पेज वाइज, कि एक पेज आ जाए हम उसमें देख लें, उसके बाद एंटर करें तो फिर नेक्स्ट पेज आ जाए. तो ये था डायरेक्टरी पेज वाइज. और अगर आपको कंप्लीट फाइल्स एक ही पेज पे देखने हैं तो डायरेक्टरी फिर हम करते थे डायरेक्टरी विथ वाइज, W लिखेंगे, P नहीं लिखेंगे, फिर डायरेक्टरी विथ वाइज, तो वहां पर फिर डेट वगैरह नहीं आती, सिर्फ फाइल नेम्स आ जाते हैं. उसके बाद है टू डिलीट वन और मोर फाइल्स. अगर फाइल कोई डिलीट करनी है, कोई भी फाइल आपके डायरेक्टरी में मौजूद है उसको डिलीट करना है, तो लिखेंगे डिलीट
और उस फाइल का नाम। कॉपी जिस तरह से विंडोज में हम बड़ी आसानी से कॉपी करते हैं, एक फाइल को दूसरी फाइल में, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में फाइल कॉपी करते हैं। कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन डायरेक्टरी और डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी, तो उसके लिए भी हमें कॉपी कमांड इस्तेमाल करना था। इस तरह से हम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमें कॉपी करना है डेटा, फॉर एग्जाम्पल फाइल का नाम है डेटा डॉट सी, किस ड्राइव पे करना है, डी पे, और अगर उसके किसी फोल्डर में करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज, तो ये फाइल फिर कॉपी होकर डी में सी लैंग्वेज के फोल्डर में चली जाएगी। और अगर आपको कोई भी ड्राइव फॉर्मेट करनी है तो फॉर्मेट अ डिस्क, तो हम लिखेंगे फॉर्मेट सी, ड्राइव पे खड़े हैं लिखेंगे फॉर्मेट डी। अगर आपको डी ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो लिखेंगे डी, तो इस तरह से डी ड्राइव जो होगी वो फॉर्मेट हो जाएगी। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वाज नॉट यूजर फ्रेंडली। The user had to learn basic commands to operate the computer effectively. अगर आपको प्रॉपर कमांड नहीं आ रहे तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। DOS was not a user friendly operating system. DOS commands were difficult to learn, memorize and use for noise computer users. DOS has been used successfully on computers for many years, but it was replaced by more user-friendly operating system called Windows in the early 1990s. क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग जो सिस्टम है दैट वाज मोर यूजर फ्रेंडली। ये डॉस का इंटरफेस है। अब हम पढ़ेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन मिड 1980s by Microsoft Corporation. It provides a graphical user interface which is user friendly. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि हमें कोई कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, उनके जरिए हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। इट अलाउज यूजर टू गिव कमांड्स टू कंप्यूटर थ्रू आइकन्स, मेनूज एंड बटन्स। इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Today's it is the most commonly used operating system on PCs and laptop computers all over the world. Microsoft has released many versions of Windows. Windows के बहुत सारे वर्जन आए over the years to enhance its user interface in computer technology. Some popular versions of Windows in the past were Windows 95, 98, Windows Millennium, Windows XP, Windows Vista, Windows 10, and Windows Vista, etc. विंडोज 10 का ये इंटरफेस आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज इंटरफेस ऑफ विंडोज 10। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था? पोटैटो इनकॉर्पोरेशन ने। इट इज मोस्टली इंस्टॉल्ड ऑन द एप्पल कंप्यूटर। एप्पल की जो भी डिवाइसेस होती हैं उन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है दैट वन इज मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। लेटेस्ट वर्जन जो है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, और ये 10th वर्जन है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम का।
Macintosh operating system क्या है? Is more secure operating system compared to Windows. ये ज़्यादा secure है. Macintosh hardware and software works together very well with minimum flaws. Macintosh computer is the high quality but more expensive than IBM compatible computers. क्योंकि मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंप्यूटर होते हैं आप लोगों को पता है कि एप्पल की डिवाइसेस जो होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं ठीक है एज कंपेयर टू IBM computers के A large variety of application software is easily available for Windows के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन भी easily available हैं whereas operating system X has very limited application operating system X में Macintosh operating system में very limited applications है Operating system X is not a widely used operating system like Windows और operating system X का जो इंटरफेस है वो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम X का इंटरफेस है उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना इन अर्ली 1970s में एट बेल लेबोरेटरीज research center by Ken Thompson and Dennis Ritchie, which is developer of also C language. Unix operating system C language में बना है. It provides greater processing power and better security than Windows. Processing power भी Unix operating system का अच्छा है और security as compared to Windows बेहतर है. Computers running Unix operating system rarely have malware attacks. तो वायरस भी इसमें कम अटैक करते हैं. It is available for wide range of computer systems from microcomputer to mainframe. It is less popular on microcomputers on which Windows is pre-installed when they are sold. तो ये जिन कंप्यूटर्स में विंडोज़ चल रही होती है विंडोज़ प्री इंस्टॉल्ड हैं तो उस पर वो लेस पॉपुलर है और ये इंटरफेस है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़